Hello students, good morning. This is the first lesson of your syllabus, English core class 12th. The name of the lesson is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet, presented by SK Jain PGT English Jain Vikatni. So let's start. Let's see the summary in brief. The last lesson, crowd in front of bulletin board. The notice on bulletin board: from tomorrow only German language will be taught in the school. What MML said about French language: French language most beautiful, most logical, clearest language, and it is the key to our present. And what unusual things did French notice at school that day? There was no hustle bustle, there was no punishment given by the teacher, and it was as still as Sunday morning. Teacher was in special dress that he used to wear on special days like prize days and inspection days. And on back benches village elders were sitting. And what do you know about MML? MML was an ideal teacher. He was patriotic. He wrote Bible of France on the blackboard. He was regular, sincere and honest teacher. He was emotional teacher and traditional schoolmaster. He was respected by students and village elders. So this is the text of the lesson. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. So I is the narrator, the student, and he became late to school. And he was in great dread of a scolding. Dread means fear. He has a fear that the teacher will scold him. He will say harsh words to him. Why did you come late? What were you doing? Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. So the teacher has given homework of participles. Remember the rule of participle and speak in the class. This was the homework, and I did not know the first word about them. So who is I here? I is the narrator. His name is Franz, Franz. और फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के बारे में एक शब्द भी नहीं पता. ये होमवर्क दिया गया था एम हेमेल के द्वारा, जो उनके टीचर हैं. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. तो फ्रेंच के दिमाग में आया कि वह है रनिंग अवे यानी भाग जाए और पूरा दिन आउट ऑफ डोर्स बिता दे, ना घर में रहे ना स्कूल में. घर वाले समझेंगे स्कूल गया है, स्कूल वाले समझेंगे घर में होगा. Out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. I did not know the first word about them. फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि वो क्या होता है, कैसे उसका यूज होता है. एक क्षण के लिए उसने सोचा कि वह भाग जाए और पूरा दिन घर से बाहर बिता दे, स्कूल भी न जाए. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. बहुत अच्छा शानदार दिन था. सो ब्राइट. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. तो वुड्स यानी जो स्मॉल फॉरेस्ट है उसके आसपास किनारों पे पक्षी चहचहा रहे थे. और ओपन फील्ड में सामिल के पीछे प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे प्रशियन सोल्जर्स. तो ये सब देखने के लिए फ्रेंच उतावला हो रहा था. इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल. रूल फॉर पार्टिसिपल की तुलना में ये सब दृश्य प्रशियन सोल्जर्स का ड्रिलिंग करते देखना, पक्षियों का चहचहाते हुए देखना और धूप का आनंद लेना, enjoying the warm day, this was more tempting, but I had the strength to resist and hurried off to school. लेकिन फ्रेंच को ये आभास था कि नहीं, स्कूल जाना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो ही रजिस्टेड. उसने अपने इस उकसावे को काबू में किया कि नहीं, घर से बाहर दिन बिता दिया जाए या बर्ड्स की चर्पिंग सुनने में दिन बिता दिया जाए, प्रशियन सोल्जर की ड्रिलिंग देखने में दिन बिता दिया जाए. नहीं, ऐसा नहीं, पहले स्कूल जाया जाए. सो ही हरीड ऑफ टू स्कूल. तो जल्दी जल्दी वह स्कूल के लिए चला.
When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. तो जब वह टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो उसको बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ दिखाई दी. Some people gathered in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से उस बुलेटिन बोर्ड से लगातार बुरी खबरें ही मिल रही थी. कौन सी खबरें? द लॉस्ट बैटल्स, ऐसे युद्धों की खबर जो वो हार गए हैं, फ्रेंच लोग हार गए हैं. द ड्राफ्ट, नए संविधान का ड्राफ्ट या नए कानूनों का ड्राफ्ट. द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. तो जब फ्रेंच लोग हार गए तो जो प्रशियन लोग जीत गए हैं उनके कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स वहाँ पर पेस्ट होते थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. तो फ्रेंच वॉज थिंकिंग, ही वॉज क्यूरियस, वाई द पीपल आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, व्हाट इज द न्यूज ऑन द बुलेटिन बोर्ड, व्हाट आर दे ट्राइंग टू रीड, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. क्या बात है इस बार, क्या कौन सा न्यूज़, कौन सी सूचना इस बुलेटिन बोर्ड पे छपी है कि लोग उसको पढ़ने के लिए इकट्ठे हो गए हैं. देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast Bob, you will get to your school in plenty of time. तो जैसे ही फ्रेंच आगे बढ़ा, जितने जल्दी हो सकता था क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुका था, द ब्लैक स्मिथ वाचर, तो ब्लैक स्मिथ रास्ते में था, उसका नाम वाचर था, और उसका अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु, उसके अंडर ट्रेनिंग लेने वाला भी वही था. रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी. तो जब ये ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंच को जल्दी जल्दी जाते हुए देखा तो उसने उसको टोक के कहा कि इतनी जल्दी में क्यों हो, तुम तो बहुत समय है, आराम से पहुंच जाओगे. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. तो चिल्लाते हुए कह रहा था, वो टीजिंग कर रहा था. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एमहेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. तो फ्रेंच समझ गया कि ये वो उसको चिढ़ा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो जल्दी जल्दी फ्रेंच एमहेल के लिटिल गार्डन में, स्कूल में जल्दी से पहुंच गया. और जब वो पहुंचा तो ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, ही वॉज ब्रीदिंग हैवीली, ही वॉज यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल which could be heard out in the street. The opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their places and Amhamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. यूजुअली यानी प्रायः जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत शोरगुल होता है, बसल होता है, और जो कि शोरगुल सड़क पर ही सुनाई देता है. कोई डेस्क ओपन कर रहा है, कोई क्लोज कर रहा है, लेसन इकट्ठे रिपीट किए जा रहे हैं बहुत ज़ोर से कि कानों में हाथ रखना पड़ता है समझने के लिए. और टीचर का जो रूलर है वह टेबल पे जब पटका जाता है तो शोर होता है, जिससे बच्चे शांत रहें. लेकिन आज सब कुछ शांत था. फ्रेंच ने सोचा था कि कमोशन यानी शोरगुल का लाभ उठा के वह चुपचाप अपनी डेस्क पे पहुंच जाएगा बिना देखे हुए किसी के. लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था, जैसे संडे मॉर्निंग हो. विंडो से फ्रेंच ने देखा उसके क्लासमेट्स बैठे हुए हैं अपने प्लेस पे. टीचर आयरन रूलर को लिए हुए टहल रहे, अपने क्लास में इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं. और फ्रेंच को दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा. कितना वो शर्मा रहा था और कितना डरा हुआ था, आप कल्पना कर सकते हैं. तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया. आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी के सेकेंड वीडियो में. सो कंटिन्यू स्टडिंग and continue writing the difficult words of the lesson with meanings, and also make some short notes. Okay, thank you very much for watching. Take care.